So, am I audible and visible? Yes, sir. Okay, so today's topic is we are going to analyze the complexity of quicksort. ठीक है, हम क्विक सॉर्ट का आज एनालिसिस करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी डिड द एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट. किसी को याद है? What conclusion did we derive? What was our complexity of merge sort? एक बार याद कीजिए merge sort का complexity. It was theta n log n of n log n n log n. Yeah. So please keep it in your mind, or I will, in fact, I will suggest you to write this, that the complexity of merge sort is theta of n log n. Right. And let us see whether quicksort has something better to deliver. Let's see whether the complexity of quicksort is better than merge sort, and if it's better, in which particular scenario it's better. So these are the questions that we are going to address in this today's lecture. Okay. So quicksort, how does quicksort actually work? Quicksort काम कैसे करता है? बहुत आसान सा लॉजिक है. You have an array and the basic idea is you will be working on a particular partition or a particular section of an array. आप एक array के section पे काम करेंगे and उस section को हम कैसे denote करेंगे, represent करेंगे? You will have the left and right indices of that section. For example, हो सकता है कि आप array के 0 element से लेके 5 element तक के section पे काम कर रहे हैं. In that case, मैं बोलूँगा मेरे array का section है 0, 5 because I'm working with the elements in the indices range 0 to 5. So whenever you will have a section of the array, आपको बस इतना करना है. सबसे पहले आपको चेक करना है whether the size of the section is greater than greater than 1. So if the size is at least greater than 1, कम से कम अगर 2 एलिमेंट भी है array में, तो आपका array, sorry, अगर the size is greater than 1, then at least the array will contain 2 elements. This is the minimum array size for which we have to do something. और अगर आपका array का size 1 है, for example, the array contains only 1 element, say for example, the array contains only 1 element 3. So look at this particular array subsection. This array is sorted by itself, right? Because it contains only 1 element, and by trivial definition, a 1 element array is always sorted. And if suppose you are working on an array section that does not contain any element, so that means the array section is 5. You are working over a 0 element array section or a array partition. In that case also you have nothing to do. So we have nothing to do here. We have nothing to do here. But for array partitions with more than 1 element, we have something to do, because 2 elements can be out of order. For example, 7, 6. Now 7, 6 has to be corrected to become 6, 7. So there is some work to be done over array elements which are 2 element long or greater than this. But for array elements which are only 1 element in size or 0 element in size, we actually have nothing to do. So this is the logic here. This is the base criteria of the recursion. If the size of the array is greater than 1, then first of all, you are required to select a pivot element of the array. Now, how to select pivot element? This is a topic of discussion. There is lot of research has been done over this. For today's discussion, we will take the leftmost element of the partition as the pivot element, right? But you can actually have an argument, sir, why leftmost, why not rightmost? The same thing applies to rightmost also. You can also take the rightmost element of the array as a pivot. There are even better choices. Some people take the median element as the pivot, the median element of the first, the mid, and the last. So there are different discussions on which element should be taken as the pivot. But for today's discussion, please assume that we are working on quicksort algorithm that takes the leftmost element of a particular partition as the pivot, right? So first of all, select a pivot element. For our discussion, this is the leftmost element of the partition. Then anyhow, try to partition the array into 2 sub arrays. Let us call them as P1 and P2. अपने array को 2 partition में divide करने की कोशिश कीजिए. एक partition को मैं P1 कह रहा हूं, एक partition को P2. एक ही शर्त है, जो P1 के elements होंगे वो आपके pivot से छोटे
या फिर इक्वल टू होंगे, और जो P2 के एलिमेंट्स होंगे वो पिवोट से बड़े होंगे। इक्वल टू को आप किसी भी एक साइड रख सकते हैं, मैंने उसको लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। सो द ऑल द एलिमेंट्स in the left partition will be smaller or less than equal to the pivot element. All the elements in the right partition should be greater than the pivot element. After you perform this task, एक बार आपने array को दो partition में divide कर दिया, the next thing is to call the quicksort function once again, once for the left partition and once for the right partition. So this is where we have recursion, because quicksort is calling itself twice. And when a function calls itself twice, you have a recursion tree like this, because every node will be calling two different nodes. In some cases, one of the node will be of 0 length or of 1 length, so this will terminate. But the other branch, the other node can further call, and we will have a structure something similar to this. This is how the recursion tree will be generated in case of a quicksort. So, if we move down to the next slide, how can this partition be done? ये आपके पास एक array है. I have taken all the elements from 0 through 9. This is a random array without any repetition, but quicksort can handle repetitions also very easily. But for the sake of simplicity, I have taken no repetitions. So this is an array, and somehow we will have to take one of the element as the pivot element. Pivot is basically like a reference element. आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिवोट एलिमेंट हम सबसे लेफ्ट मोस्ट को लेंगे, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सम पीपल प्रेफर टू टेक द राइट एलिमेंट एज द पिवोट, सम पीपल से दैट द मीडियन एलिमेंट शुड बी टेकन एज पिवोट. सो देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च आर्गुमेंट दैट व्हिच एलिमेंट शुड बी टेकन एज द पिवोट, एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली कौन से एलिमेंट को आप पिवोट ले रहे हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ क्विकसॉर्ट. प्रैक्टिकली क्विकसॉर्ट को कितना टाइम लगेगा उससे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पिवोट एलिमेंट कौन सा लिया गया है. बट जनरली द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इज ए स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर थियोरेटिकल डिस्कशन. सो आप इस एरे पे क्विकसॉर्ट को करना क्या होता है, एनी हाउ जस्ट ट्राई टू check, first of all check the size of this array. Definitely the size of this array is greater than 1. You can see that there are 10 elements actually, right? So if the size of the array is greater than 1, आप इस array में से ये जो एलिमेंट्स हैं इनको दो पार्टीशन में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू डिवाइड दिस एरे इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट विल बी लेस देन इक्वल टू 5. दिस इज द लेफ्ट पार्टीशन, एंड द सेकंड partition should contain elements which are greater than equal to 5. So 3, 2, 4, 1, 0. This will come down to the left side. 7, 6, 8, and 9. This will go down to the right hand side. So I have shown this by this slide. You can see that our elements 3, 2, 4, 0, 1, they are less than 5, so they are in the left partition. These elements are greater than the pivot element 5, so these are in the right partition. Right? So the question here can be that sir हम यहाँ पे sort कहाँ पे कर रहे हैं, हम तो बस partition कर रहे हैं. Sorting कल का लेक्चर याद कीजिए, merge sort भी पहले split करते रहता है दो partition में, and the splitting continues until we have array subsections जो सिर्फ एक एलिमेंट के साइज के हैं. और जब आपके पास एक एक एलिमेंट के नोड्स होते हैं, एक एक एलिमेंट के array subsections होते हैं, आप उन दोनों को जब merge करते हैं, sorting का लॉजिक एक्चुअली merge में होता है. We actually arrange the elements while merging. और जब हम दो एलिमेंट को merge करते हैं, हम इस तरीके से merge करते हैं that they end up forming a sorted merged larger section. Quick sort भी कुछ ऐसे ही लॉजिक पे काम करता है. फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, we have just split it. There is no sorting involved here, but these partitions will be further splitted into subsections. This one will also be further splitted into subsection. And eventually we will have single element arrays, and then you will see that the sorting process actually begins there. So this is a schematic diagram of how a quicksort actually partitions the array into very small elements of size 0 or 1. This is the leftmost element. We have taken the pivot element as the leftmost. So 7 को अगर हम pivot element लें, so हमारा पहला टारगेट ये होगा इस कंप्लीट एरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elements. There are 9 elements. So we will be partitioning this 9 element into 2 groups. एक ग्रुप 7 से छोटा होना चाहिए, एक ग्रुप 7 से बड़ा. और अगर यहाँ पे 7 रिपीटेड है, तो
विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम जो इक्वल टू वाले एलिमेंट्स हैं, जो पिवोट से सेम एलिमेंट हैं, उनको हम जनरली लेफ्ट पे रखते हैं, बट आप उनको राइट पे भी रख के लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, तो डिस्कशन इज वेरी इजी। जो एलिमेंट 7 से छोटे हैं, देखिए वो यहाँ से वो यहाँ पे आ गए। सो दीज आर द एलिमेंट्स लेस देन 7, वी डोंट हैव एनी 7 रिपीटेड। दीज आर द एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 7, सो 7 से जो बड़े एलिमेंट्स वो यहाँ पे आ गए, 9 एंड 8। नाउ वंस यू हैव दिस पर्टिकुलर पार्टीशन, याद रखिए ये एलिमेंट्स पिवोट से छोटे हैं, द पिवोट एलिमेंट 7 इज समहाउ ब्रॉट एट दिस पोजिशन। ये कैसे करेंगे मैं आपको लॉजिक, प्रोग्राम लॉजिक में बताऊंगा। वी एक्चुअली अरेंज द पिवोट एलिमेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट पार्टीशन। तो पिवोट एलिमेंट बीच में आ जाता है, तो दिस इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये आगे जाके एलिमेंट को, एरे को सॉर्ट करने में मदद करेगा आपको। सो पिवोट बीच में है, पिवोट से छोटे लेफ्ट में है, पिवोट से बड़े राइट में है, तो वी ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ सॉर्टिंग अरेंजमेंट। वी हैव स्मॉलर एलिमेंट्स, वी हैव पिवोट एलिमेंट एंड वी हैव ग्रेटर एलिमेंट्स, राइट। बट ये जो स्मॉलर एलिमेंट्स का जो पार्टीशन है, इसके अंदर अभी फिलहाल डिस्टर्बेंसेस हैं। वी नीड टू अरेंज द एलिमेंट्स इनसाइड द स्मॉलर पार्टीशन एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स इनसाइड द ग्रेटर पार्टीशन। तो इनका अरेंजमेंट फिलहाल अभी बाकी है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। ये जो एरे है, एरे का सबसेक्शन है 4 2 1 3 5 6, इसमें फिर से हम पिवोट लेंगे 4 को, एंड नाउ our target is to bring elements less than equal to 4 to the left hand side. आप देख सकते हैं 2 1 3 is less than 4. The elements which are greater than 4 are now in the right partition, and 4 being the pivot element has been brought in the middle. So ये जो partition था 4 2 1 3 5 6 का, now this is further subdivided into two partitions, less than 4, greater than 4, and 4 being the middle element. Similarly जो 9 8 का partition है, इसमें पिवोट एलिमेंट हम लेंगे लेफ्ट मोस्ट को, दैट इज 9। 9 से छोटा एक ही एलिमेंट है, दैट बिकम्स द लेफ्ट पार्टीशन। देयर इज नो एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड, सो द राइट पार्टीशन इज एम्प्टी, सो दिस इज अ 0 एलिमेंट पार्टीशन, एंड 9 being the pivot has once again being brought in the middle part. So this process continues. 2 1 3 का एरे देखिए, जो 2 1 3 का एरे है, इसमें 2 है पिवोट, 1 क्योंकि छोटा है 2 से तो वो लेफ्ट में चले जाएगा, 3 पिवोट से बड़ा है तो वो राइट में चले जाएगा, एंड जो पिवोट एलिमेंट है उसको हम बीच में लेके आएंगे। आप प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे इसको बीच में ला सकते हैं। वंस अगेन 5 6 के पार्टीशन को देखिए, 5 पिवोट एलिमेंट है, 6 पिवोट से बड़ा है तो वो राइट में जाएगा, 5 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है इस पार्टीशन में, राइट। इस कंप्लीट पार्टीशन में 5 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, सो जो लेफ्ट पार्टीशन है वो एम्प्टी रहेगा, 0 एलिमेंट का रहेगा, एंड 5 बीइंग द पिवोट एलिमेंट उसको हम मिडिल में ले आएंगे। ये जो 8 वाला पार्टीशन है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लॉजिक याद करें क्विक सॉर्ट का, जब आपका साइज ग्रेटर देन 1 होता है तभी आप कुछ काम करते हैं, बट यहां पे द साइज इज लेस देन इक्वल टू 1। जब साइज लेस देन इक्वल टू 1 है, वी डोंट डू एनीथिंग एक्चुअली, सो देयर इज नो recursive chain involved here. The recursion terminates here. This 8 is directly copied here. There is no recursion involved at this point. Am I clear so far? I will wait, take a pause here for your doubts. Please convey your doubts till now. आपने देखा मैंने क्विक सॉर्ट में एरे को कैसे मैं पार्टीशन कर रहा हूं लगातार। The logic is very easy. एक एलिमेंट को रेफरेंस ले लीजिए, पिवोट एलिमेंट को, और try to divide the array into two partitions such that the left partition contains all the element less than equal to the pivot element, and the right partition contains all element greater than the pivot element. And after this partition we somehow bring the pivot element in the mid of the array. हम array के pivot element को array के mid में लेके आते हैं, and this is where we are actually making some kind of ordering. थोड़ा सा ordering हम यहाँ पे involve कर रहे हैं, क्योंकि पिवोट से छोटा लेफ्ट में चले गया, पिवोट से बड़ा राइट में चले गया, एंड पिवोट अपने आप बीच में आ गया। लेकिन अभी भी जो लेफ्ट एंड राइट पार्टीशंस हैं उनमें अभी भी बहुत रैंडमनेस है, डिस्टर्बेंस है, तो हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, एंड वी कीप ऑन डिवाइडिंग दिस until and unless we have 1 element or 0 element partitions. अगर आपके एरे का पार्टीशन 0 या 1 एलिमेंट का है तो उसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एट दैट पॉइंट द रिकर्शन चेन विल टर्मिनेट फॉर दैट पर्टिकुलर पाथ। So are we clear? Give me a feedback, yes, no? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. अभी तक कहानी सिंपल था। I will now request you to please go to the program. एक बार जरा प्रोग्राम में जाइए,
just see the program that I have shared with you. Try to execute the program. मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया ऐसे जैसे कि वो लेफ्ट मोस्ट के लिए काम करता है. दिस इज द प्रोग्राम. अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप यहां भी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में. जस्ट गो थ्रू द कोड. मैं यहां पे 60 सेकंड्स के लिए रुकूंगा. जस्ट गो थ्रू द कोड. जरा देखिए फंक्शंस क्या कर रहे हैं. I have tried to document the program as far as possible so that you find the code very intuitive. और मैंने एक printf डाला है. अगर आप उसको रन करेंगे तो वो printf आपको बताएगा कि array के कौन से partition में आप काम कर रहे हैं. Just try to execute the code and see the functions. फिर से शेयर करो. व्हाट्सएप पे तो लिंक मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ. फिर से व्हाट्सएप में चाहिए. सर चैट में ही दे देंगे सर. अच्छा चैट में दे दे. ओके देखिए मैंने चैट में शेयर किया लिंक. या तो आप लोगों ने रन किया कोड. आप लोगों ने कोड रन किया. यस सर. ओके सो एक बार डिस्कस कर लें ऊपर कोड को. ओके लुक एट दिस स्वैप फंक्शन. स्वैप फंक्शन मुझे आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है क्या कर रहा है. इट जस्ट स्वैपिंग 2 एलिमेंट्स ऑफ द एरे. डिस्प्ले फंक्शन एरे को डिस्प्ले कर रहा है, कंप्लीट एरे को. आप एरे के एक पर्टिकुलर सेक्शन पे काम कर रहे हैं पर डिस्प्ले पूरे एरे को डिस्प्ले कर रहा है. ओके नाउ लुक एट द क्विक सॉर्ट फंक्शन. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहां पे. क्विक सॉर्ट पैरामीटर्स देखिए. आपको 3 पैरामीटर मिलेगा काम करने के लिए. कोई मुझे बताएगा ये 3 पैरामीटर क्यों चाहिए क्विक सॉर्ट को. एक तो पार्टीशन. आप एरे या एक एरे या प्लीज कंटिन्यू. सर एक लेफ्ट एरे रहेगा, एक राइट एरे रहेगा और एक जो पूरा एरे है कंप्लीट. लेफ्ट एरे राइट एरे. सर P1 P2 जो है. नहीं क्विक सॉर्ट में P1 P2 इन्वॉल्व नहीं है. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन what is the purpose of the 3 parameters? सर कि लेफ्ट बॉन्ड और राइट बॉन्ड कौन सा है जो कि मतलब वो छोटा हो गया मिडिल वाला एलिमेंट. Okay, I'm not very satisfied with the answer. एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं. Give me a proper technical word. What is the parameter left and right doing in this function? Left and right. The left one is the one that is smaller and the right one is that is bigger than. सर No, लेफ्ट you are actually discussing the logic, students. लेफ्ट को एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है सर बाउंड्रीज है. Boundaries, exactly. Boundaries. That was the word. So left and right बता रहा है कि आप अगर क्विक सॉर्ट हैं, आप क्विक सॉर्ट का एक इन्वोकेशन सोचिए अपने आप को. ठीक है, एक बार जब फंक्शन कॉल होता है दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन. क्विक सॉर्ट के एक पर्टिकुलर इन्वोकेशन के लिए लेफ्ट बता रहा है कि तुम्हारा बाउंड्री कहां से कहां तक है. अगर आप 0 से 5वें एलिमेंट तक काम कर रहे हैं तो आपका बाउंड्री होगा 0,5. अगर आप 6 से 9 तक काम कर रहे हैं, एरे एलिमेंट 6th एलिमेंट से 9th एलिमेंट तक, तो आपका बाउंड्री होगा 6 और 9. तो लेफ्ट बता रहा है लेफ्ट बाउंड्री, राइट बता रहा है राइट बाउंड्री. एंड ये जो पार्टीशन है ये एक्चुअली एरे का नाम है. हमने पार्टीशन इसलिए नाम रखा है बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन वन पार्टीशन. ठीक है, एम आई क्लियर. लेफ्ट एंड राइट क्या कर रहा है. ओके लॉजिक को याद कीजिए. अगर आपके एरे में एक एलिमेंट या उससे कम है तो आपको कुछ नहीं करना है. सो कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट या उससे कम है. पार्टीशन में अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है,
उसका मतलब क्या है बताइए मुझे. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, व्हाट डज दैट मीन? लेफ्ट Only एंड one राइट अगर element. सेम है, व्हाट डज दैट मीन? Only one ओनली element. सिंगल एलिमेंट का पार्टीशन है, राइट? ओनली वन एलिमेंट, वेरी गुड. सो अगर ओनली वन एलिमेंट है तो वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग. एंड इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाए. इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, दैट मीन्स एनीवन? अगर लेफ्ट बाउंड्री राइट से बड़ा हो जाए, व्हाट डज दैट मीन? Zero element. Zero element. That means the boundary does not exist. The array, the partition does not exist. ठीक है? So left less than right का मतलब है the partition contains at least one or more, sorry, at least two elements, more than one element. ठीक है? At least two element होगा अगर हमारा condition satisfy होता है तो. Okay. Pivot I J, pivot हमने ले लिया leftmost element को. मैंने आपको पहले ही बताया you have different options for taking the pivot. I has been assigned to left. You will see the quote. J has been assigned to right plus one. अगर आप सोच रहे हैं कि right plus one क्यों? Because there is a do while loop involved. हम पहले minus minus करेंगे right को and then we will check. So because of that do while adjustment मुझे right plus one करना पड़ा. एक बार quote देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है? Now ये जो पहला do while loop है, सबसे पहला do while loop क्या कर रहा है? देखिए, हम I को प्लस प्लस कर रहे हैं. We are trying to increase the value of I. I स्टार्ट हो रहा है जीरो एलिमेंट, सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से, एंड I तब तक आगे जा रहा है जब तक I जो ith एलिमेंट है वो पिवोट से छोटा या बराबर है. देन वी हैव J माइनस माइनस, J राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तब तक आ रहा है जब तक उसको पिवोट से बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं. ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि दोनों को छोटे बड़े एलिमेंट मिले. अगर I and J कहीं पे रुके हैं तो हम दोनों को स्वैप कर रहे हैं, एंड स्वैप करने के बाद वी आर कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस. सो एट सम पॉइंट I and J एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. जहां क्रॉस करेंगे वहां हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को, जो कि पिवोट एलिमेंट है, उसको बीच में ला रहे हैं स्वैप करके, एंड देन वी आर एक्चुअली कॉलिंग द टू क्विक सॉर्ट फंक्शंस विद द लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन. मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा अभी. ठीक है? मैं इसको एज एक्सरसाइज छोड़ना चाहता हूं आपके लिए, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं. आई विल लेफ्ट दिस कोड एज एक्सरसाइज फॉर यू. मैंने बस आपको एक आउटलाइन बताया है. There are lot of things to be discussed in this code जो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं. So just try to interpret the code after the class. Link आपके पास है. I will now quickly move down to my continue my presentation actually. मैं चाहता हूं कि आप इस कोड को बाद में एनालिसिस करें कैसे काम कर रहा है. ये आपके लिए एक्सरसाइज है. Now coming back to the important point. यहां पे एल्गोरिथम की क्लास में मैं लॉजिक से ज्यादा इस बारे में इंटरेस्टेड हूं कि क्विक सॉर्ट को कितने बार रिकर्शन को कॉल करना पड़ेगा, कितना डेप्थ होगा रिकर्शन ट्री का. ये मेरा ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रादर देन कि क्विक सॉर्ट कितने का सिंटेक्स क्या है और क्विक सॉर्ट के लूप्स कैसे चलते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, एंड प्लीज पे अटेंशन नाउ. आपको और कुछ समझ में आए चाहे ना आए, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा दैट एनी हाउ वी नीड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर एरे ऑफ साइज एन एलिमेंट इनटू टू हाफ्स. ठीक है? एक पिवोट एलिमेंट को रेफरेंस लेके हमको एक एरे को दो हाफ में डिवाइड करना पड़ता है. एक हाफ में पिवोट से छोटे एलिमेंट आएंगे, एक हाफ में पिवोट से बड़े एलिमेंट. नाउ दिस इज आवर डिस्कशन. मुझे बताइए व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम लगेगा एक एरे को दो पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ वन पार्टीशन इज स्मॉलर देन ए रेफरेंस एलिमेंट एंड द एलिमेंट ऑफ द अदर पार्टीशंस आर ग्रेटर देन ए रेफरेंस एलिमेंट. और हमारा रेफरेंस एलिमेंट पिवोट एलिमेंट है. सो व्हाट इज द टाइम, कितने स्टेप चाहिए आपको? एक एरे को दो पार्टीशन में डिवाइड करना है, एक रेफरेंस एलिमेंट से छोटे एलिमेंट को अलग करना है. बिग O ऑफ is it big O of n or it should be theta of n? Big O. Big O of n. Okay, why not theta of n? Big O theta में क्या डिफरेंस है? Anyone? सर थीटा एग्जैक्ट हो जाएगा, मतलब थीटा एग्जैक्ट हो जाएगा. तो मुझे बताइए आपके पास 10 एलिमेंट है, राइट? 10 एलिमेंट है. 10 एलिमेंट को एक रेफरेंस एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उन 10 को दो ग्रुप में डिवाइड करना है. एक ग्रुप छोटा ग्रुप, एक ग्रुप बड़ा ग्रुप. तो मुझे बताइए क्या एग्जैक्टली 10 स्टेप लगेंगे या मैक्सिमम 10 स्टेप लगेंगे? मैक्सिमम 10. मैक्सिमम 10 स्टेप कैसे लगेंगे? जब तक हर एलिमेंट को कंसीडर नहीं करोगे, unless and until you visit each and every element, how do you decide कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में जाएगा?
Okay, एग्जैक्ट लगेगा। ओके, सी ऐसा 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 डिस्कस करते हैं इसको। आपके पास एक बैग है जिसमें व्हाइट एंड रेड बॉल, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। आपके पास 10 बॉल हैं बैग में, कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं। आपको उस बैग के बॉल्स को दो अलग अलग बैग में डालना है। व्हाइट बॉल्स को अलग बैग में डालना है और ब्लैक बॉल्स को अलग बैग में डालना है। तो बताइए, अगर 10 बॉल हैं बैग में एंड 10 बॉल के बैग को दो अलग अलग बैग में डिवाइड करना है, तो कितने स्टेप लगेंगे? 10. 10 एग्जैक्टली 10 की अपर लिमिट 10? Exactly. एग्जैक्टली 10। सो नाउ वी कम डाउन टू द पॉइंट। अगर हमारे पास n एलिमेंट है, n एलिमेंट को अगर पिवोट से छोटा या बड़ा का दो पार्टीशन करना है, तो जो भी हमारा आइटरेशन प्रोसेस होगा उसको एग्जैक्टली n स्टेप लगेंगे। एग्रीड? Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी मैंने यहाँ पे n-1 क्यों लिखा है? व्हाई दिस n-1? मेरे पास Sir, तो एरे एलिमेंट, Pivot को नहीं देखना पड़ेगा सर दोबारा। एग्जैक्टली ये आपका एरे है जिसमें n एलिमेंट है। पिवोट एलिमेंट को छोड़ दीजिए, दिस इज द पिवोट एलिमेंट। वी आर लेफ्ट विथ n-1 एलिमेंट, ठीक है। n-1 एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, छोटा ग्रुप एंड बड़ा ग्रुप। दिस इज लेस देन इक्वल टू पिवोट एंड दिस इज greater than pivot, right? So the number of steps required to do this is theta of n-1. Now theta of n-1 is can also be roughly said to be of as theta of n. जब हम थीटा में डिस्कशन करते हैं तो आप भी जानते हैं, we are only interested in the leading term of the polynomial. So theta of n-1 and theta of n में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, these two are almost equal, ठीक है। और ये कह रहा है that the time is very tightly bounded with the size of the array in a linear proportion, ठीक है। We are not very interested कि theta of n-1 है कि n-3 है कि n-7 है, all of them are said to be linear, right? So the time for splitting the array into two partitions will be theta of n. It will take theta of n operations to divide the array partition into two sub partitions, ठीक है। Agreed with me? Yes, no? Give me a yes, no. Yes, sir. मुझे कुछ और yes चाहिए तभी कॉन्फिडेंस आएगा। Yes. Do you agree that Yes, the time to split the array is theta of n? Okay, because this is the base condition for today's lecture. Okay, now so अगर हमारे पास array में n एलिमेंट है, पिवोट को अगर हम छोड़ दें, so हमको दो ग्रुप में डिवाइड करना है and we will require a theta of n time to do this operation, right? But the major question here, and this is the point students, where quick sort takes a different path from merge sort. ये point है जहां पे quick sort will take a different path. यहां तक तो बिल्कुल merge sort के जैसा चल रहा था। Pay attention to this point. Merge sort में याद कीजिए कल का लेक्चर, merge sort में whenever we divide the array into two equal halves, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में जब आप डिवाइड करते हैं, यू डिवाइड n into two halves of almost equal size n/2 लेकिन क्विक सॉर्ट में ये जो दो पार्टीशंस बनेंगे, इनका साइज क्या होगा? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन। हाउ कैन वी कमेंट अपॉन कि n एलिमेंट को जब डिवाइड करेंगे, बिकॉज कितने एलिमेंट पिवोट से छोटे हैं और कितने एलिमेंट पिवोट से बड़े हैं हम ये नहीं जानते, ये डिपेंड करेगा एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे। The size of the array cannot decide कि पार्टीशंस किस किस साइज के बनेंगे। हो सकता है आपके एरे में सभी एलिमेंट पिवोट से बड़े हों, हो सकता है कुछ एलिमेंट पिवोट से बड़े हो सकता है सब एलिमेंट्स पिवोट से छोटे हों। सो व्हाट अबाउट द पार्टीशन साइजेस? मुझे बताइए, n एलिमेंट को जब डिवाइड करेंगे कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइज का साइज m कितना होगा? हाउ डू यू नो द साइज ऑफ दिस? और अगर इसका साइज नहीं पता है तो नेचुरली हम इसका साइज भी नहीं निकाल सकते। एनी आंसर्स ऑन दिस? Can we find out the size, expected mathematical expectation of the sizes of the left and right partition? No, sir. नो सर। Any guesses? नो सर। No. Sir, fix नहीं है क्योंकि या मैथमेटिकली आप उसके एक्सपेक्टेशन को निकाल नहीं सकते, बिकॉज डिपेंड करेगा एरे के रैंडमनेस पे, राइट? yes, sir. Did you got this point? अच्छा, can we have a size
लेस इक्वल टू 0? क्या 0 पार्टीशन का साइज बन सकता है? Yes, sir. यस बन Yes, सकता है, हमने डिस्कस किया है. वी कैन हैव a 0 on the left hand side, मतलब 0 partition array. We can have an empty array on the right hand side. But can we have both the partitions as empty? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पार्टीशन एक साथ empty हो? नो सर. नो, ऐसा कभी नहीं होगा. ना एक बात बताइए मुझे, अगर एक पार्टीशन empty होता है, if the left partition is empty, what is the size of the right partition in that case? n-1. ये हो जाएगा n-1. ये -1 क्यों किया? क्योंकि pivot है ना, पिवट क्योंकि- एलिमेंट है. पिवोट एलिमेंट को हम पार्टीशंस Pivot में element. इंक्लूड नहीं करते हैं. द पिवोट एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द पार्टीशन. सो हमारा टारगेट ये है, जितने एलिमेंट है उसमें एक को छोड़ दो, जो बाकी बचे हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करो. बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो ग्रुप्स बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे हम ये नहीं जानते, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कितने एलिमेंट पिवोट से बड़े या फिर छोटे हैं. राइट? ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट इज द वर्स्ट केस पार्टीशन? ये बताइए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल्गोरिथम डिजाइनर, सबसे खराब पार्टीशन किसको मानेंगे, और ऑन द कॉन्ट्ररी सबसे अच्छा पार्टीशन किसको मानेंगे? सो नाउ लेट अस डिस्कस द वर्स्ट केस. मुझे बताइए, जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोग्रामिंग टेक्निक ये कहता है कि अपने इनपुट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो. बड़े इनपुट पे काम करना मुश्किल है, लेकिन छोटे इनपुट पे काम करना आसान होता है. तो बड़े एरे को 2 छोटे छोटे एरे में डिवाइड करो, फिर और डिवाइड करो, फिर और डिवाइड करो. कीप ऑन डिवाइडिंग योर इनपुट एरे इनटू स्मॉलर पार्टीशंस. फाइनली यू विल कम डाउन टू सिंगल एलिमेंट एरे और 0 एलिमेंट एरे. देन सिंगल एलिमेंट एरेज आर वेरी इजी टू प्रोसेस. एक एलिमेंट का एरे होता है या 2 एलिमेंट का एरे होता है, तो काम करना आसान होता है. एंड देन यू स्टार्ट मर्जिंग अप द रिजल्ट बैक. सो अगर इस फिलॉसफी को फॉलो करें, डिवाइड एंड कॉन्कर, अगर हम डिवाइड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, so what is the worst case partitioning by that can be done by quick sort? सर सबसे 0 and n-1. सॉर्टेड होगा सर. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. 0 and जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. 0 and okay, already sorted होगा. Just hold on, students. Yeah, जब already sorted होगा तब No, The sir. worst case. सर जब जरूरी नहीं 0 है, और सर. n-1 जरूरी नहीं है, सर. तब वो वर्स्ट केस. एक साइड पे एक और बाकी साइड पे सारे. हाँ भाई. एग्जैक्टली, वेरी गुड. ये जो लास्ट में जो एक बॉय स्टूडेंट आंसर दिया, ही इज करेक्ट. जरूरी नहीं कि एरे पूरा सॉर्टेड हो, लेकिन वर्स्ट केस तब होगा जब सारे एलिमेंट्स पिवोट से छोटे होंगे या फिर सारे एलिमेंट्स पिवोट से बड़े होंगे. ठीक है? when all the elements are either smaller than the pivot or all the elements are greater than the pivot. So सर वो केस में तो ऑलरेडी सॉर्टेड हुआ ना. मैं एक बार रिपीट करेंगे अपना डाउट. सर वो केस में तो ऑलरेडी सॉर्टेड हुआ है, जब पिवट से सारे बड़े हैं या सारे छोटे हैं. Okay. Just a minute. देखिए, there are two aspects to this. अगर array sorted है, then it is one of the examples of worst case. दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं. Please pay attention to my words. If the array is sorted, then you are correct. Then it is also an example of a worst case. But we can have a worst case scenario even if the array is not sorted. I will give you an example. यहाँ पे देखिए. Let us take an array. मान लीजिए pivot आपका है 9 and the array elements are 3, 4, 0. मेरा माउस सरफेस यहाँ पे रफ है. 2 and 6. Look at this array. This array is not sorted. ये array sorted नहीं है बेटा. लेकिन अगर आप इसको पार्टीशन करने जाएं तो इसमें पिवोट एलिमेंट आपका 9 आप लेंगे एंड पिवोट से सभी एलिमेंट छोटे हैं. सो ऑल ऑफ these guys 3, 4, 0, 2, 6 they will go to the left partition and the right partition will be empty. But this is not a sorted array, right? I hope you are am I clear? Yes sir. दो अलग अलग बातें हैं. Yes, sir. अगर सॉर्टेड है तो ऑफ कोर्स ये वर्स्ट केस है. ठीक है? लेकिन वी कैन हैव अदर वर्स्ट केसेस आल्सो. जब एरे सॉर्टेड नहीं है तब भी वर्स्ट केस आ सकता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो मुझे बताइए वर्स्ट केस में व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टीशंस? 0 and What- -1. One of the partition, either the left or the right,
one of the partition will be of 0 element, ठीक है, because this is an empty partition, and the other element will be n minus 1. 1 क्यों माइनस किया? 1 क्यों माइनस किया? Pivot element. Okay, because of the pivot element is lying here, इसलिए हमको 1 माइनस करना पड़ा. So this is the worst case partition. इसको बना लीजिए अपने कॉपी में. This is the worst case partitioning done by quicksort. In the worst case, one of the partition will be empty and the other partition will contain all the elements except the pivot. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Now quickly give me the case for best case. मुझे बताइए बेस्ट केस पार्टीशनिंग में क्या होगा? सर जब half दोनों and half इक्वल होगा, divide होगा सर. इक्वल होगा सर. मैं सुन नहीं पा रहा हूं स्टूडेंट, ये वॉइस जंबल्ड अप हो जा रहा है. या एनीवन? सर जब दोनों इक्वल होंगे. दोनों इक्वल होंगे. वेरी गुड. जब दोनों इक्वल या एट द मोस्ट दे कैन डिफर बाय 1 बिकॉज ऑफ ऑड इवन का इशू आएगा. जब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, आइडियल केस में हम बोलेंगे दोनों इक्वल है, दैट इज द बेस्ट केस फॉर पार्टीशन. यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल आपका पिवोट है मान लीजिए 3, आपका एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 5, एक एलिमेंट है 4 एंड एक एलिमेंट है 2. दिस इज द केस वेयर द पिवोट एलिमेंट इज 3, 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, ठीक है, बीइंग स्मॉलर देन द पिवोट, एंड 5 and 4 will go to the right hand side being greater than the pivot, and 3 will come some down here. So this is the best case for quick sort जब दोनों एलिमेंट ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं. one is n by 2 and the second is n by 2 minus 1. ऑलमोस्ट इक्वल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इफ n is odd even का चक्कर होगा यहां पे. अगर n even है तो n minus 1 will be odd, and odd के केस में you cannot divide a odd number into two equal halves. But if n is even, if n is odd itself, then n minus 1 will be even, and even number can be divided into two halves. So उस point को अगर हम यहाँ पे ignore करें in for very large n, this point actually does not matter in the final complexity. हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं binary search में. So this is a best case partitioning for quick sort when the sizes of the both the partitions are almost same. Both of them are almost of same length, right? Okay, did you notice this point? जब दोनों array के sizes almost same होंगे, what is the relative position of the pivot element? सेंटर. हाँ, सेंटर. क्या बोलते हैं मैथमेटिकली जब एक एलिमेंट किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में होता है, क्या बोलते हैं आप उसको? Median. That is called the median element, not the arithmetic average. ये मीन नहीं है, मीडियन है, ठीक है. अगर आपका पिवोट एलिमेंट लगभग मीडियन है, बिकॉज मीडियन से आधे एलिमेंट बड़े होते हैं और मीडियन से आधे एलिमेंट छोटे होते हैं, यही मीडियन का डेफिनेशन है. सो व्हेन द मीडियन इज, व्हेन द पिवोट हैपेंस टू बी द मीडियन, द एरे विल हैव अ बेस्ट केस पार्टीशनिंग एंड बोथ द पार्टीशन विल बी ऑलमोस्ट ऑफ n by 2 साइज. नाउ लेट अस ड्रॉ द रिकर्शन ट्री. अगर आप इस क्विक सॉर्ट का रिकर्शन ट्री बनाने जाएंगे, आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि ये कैसे डिसाइड करें कि पार्टीशनिंग कैसे हुआ है. सो ऑफ कोर्स जब आप किसी मैथमेटिकल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, जब आप किसी मैथमेटिकल फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, व्हाट वी डू इज वी टेक द लोअर बाउंड एट द अपर बाउंड. सो यहां पे हमारे पास बेस्ट केस है एंड वर्स्ट केस है. हम इस ट्री को दो बार बनाएंगे, एक बार वर्स्ट केस के लिए, एक बार बेस्ट केस के लिए. जो वर्स्ट केस है ट्री का, वो हमको क्या देगा? अपर बाउंड देगा कि लोअर बाउंड देगा? क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस सिनेरियो हमको क्या देगा टाइम पे, अपर बाउंड या लोअर बाउंड? अपर बाउंड. अपर बाउंड देगा. और जो क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस पार्टीशनिंग है, वो क्विक हमको टाइम का लोअर बाउंड देगा, ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द ट्री फॉर द वर्स्ट केस. क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस पार्टीशनिंग सिनेरियो सोचिए एंड ट्री को बनाइए. सबसे पहले आपके पास यहां पे n एलिमेंट्स का एरे है. मुझे बताइए इस एरे को पार्टीशन करना है आपको इनटू टू पार्टीशंस ऑफ डिफरेंट और मे बी सेम साइज. व्हाट इज द टाइम नीडेड टू पार्टीशन? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बताइए स्टूडेंट्स. एक एरे को दो पार्टीशन में डिवाइड करना है बाय टेकिंग ए रेफरेंस एलिमेंट एज पिवोट एलिमेंट. सो व्हाट इज द टाइम टेकन? क्या आया था डिस्कशन? याद कीजिए, बॉल वाला एग्जांपल, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल वाला एग्जांपल याद कीजिए. थीटा ऑफ n, एग्जैक्टली. सो थीटा ऑफ n का मतलब है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n.
टू बी मोर प्रिसाइज दिस वाज थीटा ऑफ n माइनस 1, अगर आप याद करें तो, ठीक है, बट थीटा ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n. सो इसको हम c इंटू n, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई n, इतने टाइम में डिवाइड कर देंगे इंटू टू पार्टीशंस. सो दिस इज पार्टीशन P1 एंड दिस इज पार्टीशन P2. वर्स्ट केस में किसी एक पार्टीशन को 0 होना पड़ेगा. आपने मुझे बताया वर्स्ट केस तब होता है जब when one of the partition is empty. Without any loss of generality मैं लेफ्ट पार्टीशन को empty ले रहा हूं. So this is a 0 element partition. Pivot यहां पे बैठा हुआ है. So we are left with n minus 1 element for the right side. अब ये जो 0 element partition है ये फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, इसका रिकर्शन यहां पे खत्म हो गया. बिकॉज याद कीजिए क्विक सॉर्ट का रिकर्सिव डेफिनेशन, आप क्विक सॉर्ट में चेन को आगे तभी बढ़ाते हैं व्हेन द पार्टीशन कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट. सो ये वाला चेन यहीं पे टर्मिनेट हो गया. वी आर डन विद दिस. दिस डज नॉट प्रोसीड फर्दर. बट लुक एट द राइट हैंड पार्टीशन. जो राइट हैंड साइड का जो एरे है वो अभी भी उसके अंदर n-1 एलिमेंट है. सो वी हैव n-1 एलिमेंट्स हियर. इसको अभी भी हमको और डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मेरे पास n एलिमेंट है तो n एलिमेंट को डिवाइड करने के लिए थीटा ऑफ n टाइम लगता है. सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू स्प्लिट n-1 एलिमेंट? This will be theta of n-1. And what is theta of n-1? It is actually some constant multiplied by theta n-1. So अगर मैं इसको डिवाइड करूं और यहां भी वर्स्ट केस के बारे में सोचूं, if I take worst case, देखिए वर्स्ट केस तब होगा जब हर लेवल पे वर्स्ट केस पार्टीशनिंग हो रहा है. ठीक है, दिस इज पॉसिबली द वर्स्टेस्ट केस, ऐसा बोलना चाहिए मुझे. सो वर्स्ट केस तब होगा when we have worst case scenario at every partition. So अगर मैं यहां पे worst case consider करूं, so once again we will have a empty partition array here and we will be left with n-2 elements here. n-2 क्यों? Because pivot is not included in any partition. So this tree will continue. We will have a theta of n-2, that is c into n-2 time here. Once again a empty partition on the left hand side and we will be left with n- partitions on the right, n elements on the right hand side. Now, can anybody tell me the depth of this tree? What is the depth of this tree? What is the maximum maximum length path? इसका depth कितना होगा students? n n-1. n-1, sir. It will be n. Sir. Why n? N क्यों होगा? Because we are starting with n. Yeah, the depth is n-1 actually. You are correct. The depth is n-1 because we don't consider the last edge. But n से छोटा होता है कहां तक जाएगा? n से n-1. n-1 के बाद नोड कितने का बनेगा? n-2 dot dot dot. What is the last? What is the length of the last node? Last node का length कितना होगा? 1. So from n we will be going up to 1. The depth will be n-1. Even if you take 1, it will not matter. ठीक है? Are we done with this? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you now draw the tree for the best case? Can you draw the tree for the best case partitioning of quicksort? Yes, sir. Yeah, please draw the tree for the best case. We are short of time, so please draw the tree of best case. जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए पार्टीशनिंग कैसे हो रहा है और हर लेवल पे कॉस्ट कितना है. सेव हो जाते हैं एनोटेशन, सेव हो जाते हैं. Yeah, so look at the best case scenario. Best case वो होगा जब आपका array almost equal partitions में divide होगा. मैं almost इसलिए ले रहा हूँ, because of odd even issue. There can be odd even issue, but we will take n/2. So this is the best case. N is divided into n/2 on the left hand side, n/2 on the right hand side. Split करने में आपको time लग रहा है cn. So the partitions will be of n/2. Once again, this is further divided. Sorry, I have missed out the arrow here. Once again, the partitions will be of n/2, n/4, n/4, and so on. What is the depth of this tree? Tree का depth कितना होगा?
Log log n. n. log n क्यों होगा यहाँ पे n-1 क्यों नहीं हो रहा है? Because you are dividing the tree into half each time. So n is divided into n by 2, then it is divided into n by 4, then it is divided into n by 8, and we will reach to a tree. We will reach to a situation when the tree has nothing except one single element. So the depth of the tree for the best case will be log n. What is the base of log here? 2. 2. What is the base of logarithm here? 2. 2. Fine. So we will continue the lecture tomorrow. We will try to add up the sum और देखेंगे कि इसका फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है. ट्री तक आज आपने देख लिया, कल हम इसको सम अप करके देखेंगे फाइनली what are we having for the best and worst case complexities. Any doubts till now? Any doubts? No, sir. So I will be sharing the quiz within half an hour. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ये हैंग हो गया.